خداوند کے پاک قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کی میں خداوند میں سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے گھرانوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم استاد کی خدمت کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اس خدمت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ان 5 خدمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم نے جنرلی بھی پڑھا اور ڈیٹیل سے بھی دیکھا۔ ہم نے 4 خدمتیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ پانچویں خدمت ہے استاد کی ہے جو اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج۔ میں پہلے نمبر پر کچھ باتیں استاد کے تعلق سے جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ ہم جانیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں استاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اسکول کا ایک ٹیچر جو بچوں کو کوئی چیز سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، ایسی چیز جس سے بچے ناواقف ہوتے ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ اس کو جو چیز استاد کا درجہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سارے علم سے واقف ہوتا ہے جو اس نے سکھانا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی اس پیشے میں آ چکے ہیں جو صرف کچھ وقتی طور پر کہہ لیں کہ کوئی اور جاب نہ ملنے کی وجہ سے، یا جو وہ کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں وہ نہ کر پانے کی وجہ سے، وہ ایک استاد کے پیشے کو اختیار کر کے کسی بھی اسکول یا کالج میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کے اندر جو ہے وہ نہ تو پڑھانے کی یا سکھانے کی قابلیت ہوتی ہے اور نہ انہیں اس کام کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ میں اس وقت اسپیسیفک جو بات کر رہا ہوں وہ سیکولر ایجوکیشن کے تعلق سے کر رہا ہوں، ابھی میں ریلیجس ایجوکیشن کو ٹچ نہیں کر رہا۔ دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ دنیاوی تعلیم میں بھی آلریڈی یہ چیز امبیلنس ہو چکی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ اس شعبے میں آ گئے ہیں کہ جو حقیقت میں اس ذمہ داری کو نہ جانتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ایک پوری نسل جو ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور جتنی بھی ہے، جتنے لیول پر بھی ہے، جتنی تعداد میں بھی ہے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس استاد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ انہیں صحیح طریقے سے کوئی چیز جو بھی وہ پڑھاتا ہے یا جس مضمون کا بھی وہ استاد مقرر ہوا ہے یا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے یا کہلاتا ہے، اس مضمون کے بارے میں صرف علم جو ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اس لیول تک لے کر آنا یا خود ان کے لیول تک جانا اور انہیں یہ بات بتانی اور سمجھانی، یہ ضروری ہے۔ اب میں اگر روحانی تعلیم کی طرف آؤں، دینی تعلیم کی بات کروں، تو خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سب سے اعلیٰ استاد ہیں، یعنی اس تعلق سے کہ لوگ حیران تھے۔ ہم جانتے ہیں خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوگ حیران تھے کہ اس کی جو تعلیم ہے خداوند کی، متی رسول کی انجیل 7 باب کے مطابق، کہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، یعنی جو انہوں نے پہلے سنی تھی اپنے صدوقیوں سے، فریسیوں سے باتیں، انہوں نے سب سے جو مین چیز اس میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم نہیں دیتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انہیں صاحب اختیار کی طرح تعلیم دے رہے تھے کہ جیسے کسی کے پاس اختیار بھی ہے، صرف جو ہے وہ سکھانے والا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے اس کے اندر ایک اتھارٹی نظر آتی ہے، اس بات کے اندر ایک روب نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ لوگوں کو پہلی بار جب نظر آئی تو وہ خداوند یسوع مسیح میں ہی انہیں نظر آئی۔ اب یہ خدمت جو ہے جب خداوند نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی کے ساتھ خداوند کی بہت بڑی محبت ہے، میں اگر اپنے تعلق سے بات کروں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ خدمت ہے کہ اگر خداوند کسی کو یہ خدمت دیں، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے شخص کو یہ خدمت دی جائے جس کو اس خدمت کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، وہ کم از کم ایسا نہیں چاہیں گے۔ لیکن جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی یہ بات ڈسکس کی کہ بے شمار
ऐसे लोग जो पहले किसी और जॉब में थे, वहाँ से वो निकल गए या जॉब से उनको निकाल दिया गया या किसी और वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और उनको मौका मिला कि वो उस्ताद बन जाएं, वो किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दें, तो उन्होंने उस मौके को जो है वो अवेल किया और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आगे जो स्टूडेंट्स थे उनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लग गया। चाहे वो सिफारिश से भर्ती हो गए, चाहे वो किसी भी तरीके से इस जॉब में आ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा जो किरदार है इस सारे काम के अंदर वो कितना सेंसिटिव है, कितना हसास है, कि हमारी इस चीज़ के अंदर प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से जो शागिर्द हैं, जो तालीम पाने वाले हैं, वो कितना सफ़र कर सकते हैं, कितना नुकसान उठा सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ की परवाह किए बगैर जो है वो सिर्फ अपने रोज़गार को देखा, अपनी लाइफ जो है उसको देखा कि हमने उनकी कैसे अच्छी गुजार सकते हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल सकती है या नहीं, किस तरीके से हम इसको चलाएं, अपने सर्कल को उन्होंने इस शोबे को इख्तियार कर लिया। लिहाजा खुदावंद तो ऐसे लोगों को कभी भी मौका नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोग खुद से ज़रूर जो है वो उस्ताद बन जाते हैं और ऐसे उस्तादों को खुदा का कलाम वाज़े अल्फाज में झूठे उस्ताद कहता है। और मैं इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सीखने सिखाने के ताल्लुक से हमने देखा है कि रसूल भी सिखाते थे और उसके बाद हमने देखा कि मुबशर की खिदमत में भी यही चीज़ आई, मुबशर भी जो है वो सिखाने वाला हो, तालीम देने वाला हो, ठीक है। फिर जो है वो हम अगर देखते हैं तो चरवाहे के लिए भी ये चीज़ है, ठीक है। नबी के ताल्लुक से अगर देखें तो क्योंकि नबी ने खुदा के मैसेज को पहुंचाना है और लोगों को गाइड करना है कि उन्हें जो है वो अपने आप को कैसे तब्दील करना है और खुदा की मर्जी क्या है, इसलिए उसके अंदर किसी हद तक शायद उस तरीके से तालीम देना नहीं है जिस तरीके से रसूल, मुबशर और चरवाहे जो हैं वो इस काम में आते हैं। अब किसी न किसी एतबार से तो ये सभी लोग जो हैं वो तालीम देने के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन अगर किसी खिदमत के अंदर ये चीज़ जो है बाकायदा तौर पर आती है तो वो उस्ताद की खिदमत है, कि जो बाकायदा तौर पर एक अथॉरिटी है इस चीज़ के अंदर, कि जो बात उस्ताद करेगा वो चीज़ जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ज़्यादा मुकद्दम समझा जाएगा। और मज़ेदारी की बात ये है कि पौलुस रसूल की एक बात जो है मैं शेयर करना चाहूँगा, कि जिससे मुझे जब पढ़ा मैंने तो मुझे इस चीज़ के ऊपर खुशी भी हुई और ज़ाहिर है कि एक उसके अंदर मुझे तशवीश भी इस बात की हुई कि ये इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पौलुस रसूल इन दोनों ही खिदमतों पर इस तरह खुदावंद एक ही वक्त में मुबशर भी बने, उस्ताद भी बने, चरवाहे भी हैं वो और नबी भी। उसी तरह यहाँ पर मैं जब देखता हूँ कि पौलुस रसूल के बारे में, पौलुस रसूल अपने बारे में क्या कहते हैं, जिससे ये चीज़ सामने आती है कि वो भी एक वक्त में 2 खिदमतों पर काम कर रहे थे, जिसमें कि अगर हम जो है वो पहला तिमोथियस जो है दूसरा तिमोथियस जो है, सेकंड तिमोथी को अगर हम पढ़ें तो सेकंड तिमोथी की जो अगर आप पहले बाब की 11वीं आयत को पढ़ें, चैप्टर 1 वर्स 11 को, तो लिखा है कि जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर, यानी ये 3 खिदमतें आ गई हैं इनके पास। जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला कौन है? इवेंजलिस्ट यानी कि मुबशर, और रसूल जो कि अपोस्टल है, और तीसरा उस्ताद, यानी 3 खिदमतें पौलुस रसूल खुद बयान कर रहे हैं कि मैं इन 3 एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है मुझे अपॉइंट किया गया है। तो इट इज पॉसिबल कि एक टाइम में जो है वो एक शख्स 3 ऑफिस में काम कर सकता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि वो किन ऑफिस में है और किन ऑफिस में वो नहीं है। मैं थोड़ी सी अगर इसको पीछे से कुछ आयत को पढ़ूं तो लिखा है कि
8वीं आयत में कि पस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझ से जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातर मेरे साथ दुख उठा। सैरे ना कर, सपाटे ना कर, ठीक है। ये वो खिदमत हैं जिनके अंदर जो है वो इंसान को दुख उठाने पड़ते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि बस इसमें जो है वो सिर्फ पैसा और सैर सपाटे और ये चीज़ें हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसू में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यसू के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि अगर मैं इस बात को अगर थोड़ा सा बयान करूँ कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जो आज के दौर में खादम होते हुए अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि पास्टर साहब ते आप मरीज ने, तो उन्होंने कहना ये कितों दी दुनिया को तो शफा देनी है, तो आप मरीज ने, ठीक है। या फिर अगर ये लगे कि जनाब पास्टर जो है या मसलन इवेंजलिस्ट जो है या कोई भी मसलन जो है वो खुद उसके पास तो खुद खाने के लिए तो आप तो लॉजिकल आम में तो लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे तालब नहीं, किस चीज़ के मोहताज नहीं होंगे। तो फिर ये किस तरह का खादम है जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, जो मतलब दूसरी तरफ जिसके पास, जिसने राज्य के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उसके पास जहाज भी हैं, उसके पास कारें भी हैं। देखो जी खुदा ने कैसे जनाब भाग लगाए हैं, इसको कैसी बरकतें दी हैं जनाब, खुदा ने देखा है। ये होती है खिदमत, फलदार खिदमत है इसकी। देखो इतने लोग हैं। मैं कहता हूं कि जनाब सबसे बड़ा हमारे पास जो सबूत है और मिसाल है वो खुदा यीशु मसीह की है कि 12 शागिर्द भी उनके साथ, आपको पता है कि नहीं रहे थे। आखिरकार वो 12 भी, एक तो खैर गुमराह करने वाला निकला, बाकी जो 11 थे वो वैसे ही आपको पता है कि वो छोड़ गए थे उस टाइम पर। अब ये कि उसके बाद क्या हुआ, ये एक सेपरेट मैटर है। खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, उनके सारी जो उन्होंने मसलन मोजज़ात किए लोगों के सामने, उसके बाद उनसे बड़ा हिस्ट्री के अंदर कोई ना नबी है, ना कोई मुबशर है, ना कोई चरवाहा है, ना कोई उस्ताद है। उसके बावजूद कितने लोग उनके पीछे थे। मतलब वो करते जरूर रहे, लोग शागिर्द बनते रहे, डिसाइपलशिप में आते रहे, लेकिन कितने लोग उस टाइम पर उनके साथ थे जिस वक्त उनकी मसलूबियत हुई। मैं सिर्फ एक ही शागिर्द को देखता हूँ और वो यूहन्ना आरफ है, जो आखिर तक खुदा यीशु मसीह की सलीब के पास रहे। बाकी मैं किसी और शागिर्द को वहां पर ना देखता हूँ, ना मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, ना मैं सुनता। ये बात की बात है कि वो शागिर्द दोबारा से कैसे खुदावंद ने उनको जो है वो एक्टिव किया और फिर अपने पाकरू को भेजा, बाप से दरख्वास्त करके पाकरू भेजा, और फिर जो है वो लोग एक्टिव हुए, उन्होंने मुनादियाँ की, उन्होंने मारे खाई, उन्होंने जो है वो जाने भी दी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि उनकी खिदमत जिस वक्त कंप्लीट हो चुकी थी, उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। तो कहने से मुराद ये है कि आज हम या आप क्या हैसियत रखते हैं, हम क्या लोगों को कह सकते हैं। अगर हम हकीकी कलाम सुनाते हों, यकीन करें हमारे साथ भी शायद गिने चुने लोग आए, और वो भी पता नहीं किस तरह से वो कायम खुदा उनको रखे तो वो रहे, अदरवाइज वो क्या सोच सकते हैं कि यार क्या क्या खिदमत है इनकी, इनके तो घर के बिल नहीं पे हो रहे, इनके तो किराए नहीं दिए जा रहे, इनके तो बच्चों की फीसें ड्यू हैं, ये किस तरह के खुदा के खादम हैं। और दूसरी तरफ जो लोगों को लूट रहे हैं उनको हम कह रहे हैं ये बड़े बाबरकत खादम है। मतलब यहाँ तक हमारी सोचें कंफ्यूज हो चुकी हुई। बहरहाल ये चीज हमारे सामने क्लियर होती है कि पौलुस रसूल एक ही वक्त में इन तीनों खिदमतों पर जो हैं वो मामूर हैं, और ये कोई आसान नहीं है कि कोई शख्स खिदमतें तो लेता जाए लेकिन उसके अंदर जो है वो दुख उठाने का जज्बा ही ना हो, दुख उठाने की उसके अंदर जो है वो कुव्वत ही ना हो। तो ये एक बात है। इसके अलावा एक और आयत भी है जो मैं पहला तिमोथियस में शेयर करना चाहूँगा। पहला तिमोथियस में भी खुदावंद के जो बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं दूसरे बाब की
7वीं आयत में कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। सिखाने वाले से मुराद फिर कौन है? उस्ताद है। वो इधर भी उसी चीज़ को जो है वो बयान कर रहे हैं कि मैं इन तीनों खिदमतों पर जो है मैं मुकर्रर हुआ। अब ये चीज़ तो वो है कि जो हमें मिलती है उस्ताद के ताल्लुक से, जिससे हम देख रहे हैं कि जी पौलुस रसूल के पास किस तरीके से ये खिदमत थी। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इब्रानियों का ख़त एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक सबूत है इस चीज़ का कि उस्ताद की खिदमत क्या होती है। क्योंकि इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो किस तरीके से आयात को बयान करता है, समझाता है, सिखाता है कि उसको पढ़ने वाले लोग जो हैं वो समझे उन बातों को कि दरअसल उनका मतलब क्या था, इस बात का क्या मतलब था, इस बात का क्या मतलब था। और जाहिर है कि उस्ताद भी कभी भी उस विजन से जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों को बख्शी है उनसे हटकर कभी भी उस्ताद जो है वो तालीम नहीं दे सकता जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर शुदा उस्ताद है। और अगर इस ताल्लुक से हम ये देखें कि हम सही एक उस्ताद जो है वो कैसे पहचाने हम कि वो सही उस्ताद है या नहीं, या एक सही उस्ताद के लिए क्या चीज़ें लाजम है कि वो करे। तो देखिए इसमें 2 जगह ऐसी हैं खुदा के कलाम में जो मैं चाहूँगा इस वक्त जो मेरी नज़रों में है। एक तो पतरस रसूल का दूसरा ख़त है और दूसरा यहूदा का ख़त है। और मैं नहीं समझता कि हम इन दोनों को 1 या 2 रिकॉर्डिंग्स में कंप्लीट कर सके, लेकिन मैं उसको शुरू ज़रूर करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ताल्लुक से। सारी बातचीत के उस्तादों के ताल्लुक से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बाकी आयात को भी देखते रहेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि पतरस रसूल का जो दूसरा ख़त है 2 पीटर, उसके मैं दूसरे बाब से पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा बाब, इसका टोटल जो दूसरा बाब है, मैं इस सारे बाब को पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम इसकी एक एक आयत पर गौर करें और उसको समझें कि इसका मतलब क्या है। खुदा के कलाम में लिखा है कि और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। ठीक है, गौर कर लें अब बात के ऊपर कि उस उम्मत में, यानी कि कौन सी उम्मत? जो इसराइल कहलाती है, उसमें झूठे नबी थे। झूठे नबी उसमें हुए थे जिन्होंने आके झूठ फैलाया था और लोगों को झूठ की तरफ लगाया था और उन्होंने जिंदा खुदा से उनको हटाकर जो है वो बाल की तरफ मतवज्जा किया था। आप जानते हैं 450 नबी जिन्होंने पूरे इसराइल को जो था वो बेवकूफ़ बना दिया था कि उसके बाद सिर्फ उनके सामने एक एलिया ही बचा था इस चीज़ के अंदर के जो गवाही दे रहा था जिंदा खुदा की। वो अलग बात है कि जब एलिया ने खुदावन से ये बात की थी तो खुदावन ने कहा था कि मेरे पास अभी भी 7000 ऐसे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, तो अकेला नहीं है। लेकिन उस वक़्त फिजिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर वो अकेला ही था जिसने कहा था कि सिर्फ जिंदा खुदा जो है वो यहोवा ही है और कोई भी नहीं। अब उसी तरह आज आप ये देख लें, अब जरा गौर करना है आपने इस बात पे तरीके से कि जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। इट मीन्स के पहली चीज़ ये है कि वो झूठे नबी क्या करते हैं कि वो जिंदा खुदा से आपको हटा कर किसी गैर मबूद की तरफ आपको ले जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं ये अब उनका एक आर्ट है अपना। इतनी आसानी से तो कोई नहीं जाएगा। जाहिर है कि वो उसको इस तरीके से जो है वो आर्टिस्टिकली डील करेंगे कि वो शख्स जो है वो गुमराह हो जाएगा और उसके दिल में शक आ जाएगा कि क्या जिस खुदा को मैं पूज रहा हूँ वो खुदा वाकई ही खुदा है या कोई और भी उसके अलावा है। सो पहली चीज़ तो ये है। और जाहिर है कि अगर वो ये काम करते रहे तो झूठे उस्ताद ये काम डेफिनेटली करेंगे। लिखा है कि जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। आज जो बिदतें निकली हुई हैं इनका सेरा जो है वो झूठे उस्तादों के सर ही जाता है। ये जितनी हमारे इर्द गिर्द बिदती तालीमात जो फिरती हैं, जो फिर रही हैं पूरे ज़माने में, वो क्या है? वो सारी इनकी ही जो है वो मेहरबानियाँ हैं, इन उस्तादों की, जो कि उस्ताद तो बन गए हैं लेकिन ये खुद साख्ता उस्ताद हैं और झूठे उस्ताद हैं और झूठ को जो है ये प्रीच करते हैं। पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालते हैं। अच्छा, क्या अब उसका होता क्या उस चीज़ के साथ? लिखा कि और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। अब कोई भी शख्स आज जो खिदमत में है
وہ कभी भी खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसी नाम को बेच के तो मैंने रोटी खानी है। फिर ये बात जो लिखी है यहाँ पर, ये कैसे साबित होगी कि मालिक का इनकार कैसे करेंगे वो? आपके ख्याल में इनकार क्या होता है? इनकार क्या ये है कि कोई शख्स खड़ा होकर कह दे जी मैं इसके नहीं मानता? आपके सामने खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, एक तमसील उन्होंने पेश की कि बाप ने एक बेटे से कहा कि तू ये मेरा काम है, ये तू करके ला जरा, ये कर रहा। उसने कहा जी अब्बा जी मैं अभी करके आता हूँ, बिल्कुल आपने जैसे कहा है। लेकिन वो नहीं गया। बाद में दूसरे को उसने कहा कि तू ये मेरा काम है करके आ। उसने कहा जी मैंने नहीं जाना, सॉरी मेरी तरफ से इनकार है। लेकिन लिखा कि बाद में पछताया और चला गया। खुदावन ने पूछा लोगों से कि तुम्हारी दानिश में किसने जो है वो बाप का हुक्म माना? तो सबने कहा कि दूसरे वाले ने, जिसने कहा था जी मैंने नहीं जाना। ठीक है, अब मुझे नहीं याद क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताई है तमसील कि इसमें पहले वाला दूसरे वाला आप उसको चेक कर सकते हैं, कलाम में से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है वहां पर कि एक जो था उनमें से एक भाई जो था उसने हुक्म कहकर नहीं माना और दूसरे ने इनकार करके भी मान लिया। अब बेशुमार ऐसे लोग आपके सामने होंगे जो मुंह से इकरार कर रहे हैं खुदावंद का, लेकिन अमली तौर पर वो इनकार कर रहे हैं। और यहां पर जो बात हो रही है ये अमल की है कि वो क्या करेंगे, उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। अमल आ गया आपके सामने। अमल क्या है उनका? शहवत परस्ती उनका एक अमल है। ठीक है, मुंह से वो कभी भी इस चीज को नहीं कहेंगे, हम तुम नफरत करते हैं, बहुत गलत गुनाह है, शहवत में तो आना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरा गुनाह है ये, ओहो तोबा तोबा तोबा। लेकिन अमली तौर पर वो क्या कर रहे हैं? वो शहवत परस्ती कर रहे हैं और बहुतेरे जो है वो उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। चले मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच। आजकल हमारे चर्चिस में कुछ लोगों का ट्रेंड बन गया है, कुछ खादमुद्दीन जो अपने आप को कहलाते हैं, कि उनके चर्च में जो खवातीन आती हैं वो खवातीन अपने सरों पर दुपट्टा नहीं लेती। अब वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने इस बहन को ये कह दिया कि खुदा का कलाम तो आपको सर ढांपने के लिए कहता है, तो दोबारा तो इस खातून ने आना नहीं है चर्च, ये तो नाराज हो जाएगी। ठीक है, और वेरी सॉरी टू से कि जब वो नाराज होकर नहीं आएगी तो उसके पीछे 5-6 लड़के जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। फिर जो हमारे चर्चिस का मैं एक जनरल हाल अगर बयान करूं, सब लोग ऐसे नहीं है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, ये सब लोगों के लिए ये बात नहीं है, ना सब बहनों के लिए ये बात है। हो सकता है उसमें ऐसी बहनें हों जो इस चीज का इंतजार करती हों कि जिस दिन हमें जो है कोई कहेगा हम वाकई इस चीज को करेंगे अमली तौर पर, और कुछ ऐसी बहनें भी हों जो इस चीज को नापसंद करें, और कुछ ऐसी जो ऐसे भाई भी हों जो वाकई वहां पर खुदा के कलाम के लिए आते हैं और वो उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि वहां पर किस किस्म की खवातीन आती हैं। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं वहां पर जो इसी गर्ज से आते होंगे कि बस हमने सिर्फ चर्च जाना है सिर्फ अपनी शहवत परस्ती को पूरा करने के लिए। ठीक है, उनके लिए खुदा के कलाम की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए खुदा के उस मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर उनके लिए उन खद्दाम की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, वो उस जगह का भी एहतराम नहीं करते जहाँ खुदा का कलाम पढ़कर सुनाया जाता है। ठीक है, और फिर जाहिर है कि ये राह हक की बदनामी बनती है इस चीज़ से, जब वही लोग वो झूठे उस्ताद लोगों को ये समझाएंगे कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, इससे कोई खुदा आपके कपड़ों को नहीं देखता, खुदा आपकी जो है वो दुपट्टों को नहीं देखता, आपका दिल साफ होना चाहिए, ये ज़ाहरी बातें हैं, ये है वो है। मैं कहता हूँ जी खुदावन कि बंदा यकूब ने कहा है कि ईमान बगैर माल के मुर्दा है। ठीक है, आप अगर ये सोचिए ना कि मुझे जो है वो ज़ाहरी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, कुछ भी हर चीज़ जो है वो बातिन में होगी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? खुदावन ने तो कहा था दया के ऊपर, ये बात उन्होंने कही थी कि लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। जो सौंफ और जीरे और पुदीने पर दया की देते हो, तुमने दीन की भारी बातों को छोड़ दिया है, लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। इट मीन्स कि दोनों चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हमें फिजिकली भी अपने आप को खुदावन के लिए प्रिपेयर करना है, वरना पौलुस रसूल हमें इस तरह की डिटेल्स ना बताते कि औरतें जो है वो सर ना गूंदें और जेवरात और इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। ठीक है, अपने आप को जो है वो किन चीज़ों से आरास्ता करें,
یہ انہوں نے بتائی ہیں. یعنی پھر انہیں کیا ضرورت تھی کہنے کو, تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ جو ہے جناب آزاد ہے مسیح. پطرس رسول اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ جو تمہیں خداوند میں حاصل ہے. تو پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھے کہ اپنی جو آزادی ہے اس کو بدی کا پردہ بنا لیا ہے. کیا یعنی اس کا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ پہلا پطرس کے اندر سے یہ بات لکھی ہے, پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی 15 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو, مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس آزادی کو بدی کا پردہ بنا لیا. خدا کے بندے یہ چیزیں جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے یہ باتیں لکھی, لیکن آج ہم اگر نہیں سمجھتے تو پھر کیسے سمجھیں گے؟ اور اسی لیے استاد مقرر کیے ہیں خداوند نے کہ یہ باتیں سمجھائی جائیں, سکھائی جائیں. آگے لکھے گا, اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ لائف سٹائل ہے جو جھوٹے استادوں کا ہے. اس کو اپوزٹ اگر آپ کر دیں گے تو جو صحیح استاد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. چھن کے صحیح استاد کی کوالٹیز آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ صحیح استاد کیا ہوتا ہے. صحیح استاد اپنے مالک کا انکار نہیں کرے گا. صحیح استاد پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نہیں نکالے گا. صحیح استاد جو ہے وہ شہوت پرستی میں نہیں جائے گا, نہ شہوت پرستی کی تعلیم دے گا تاکہ راہ حق کی بدنامی ہو. وہ کبھی بھی راہ حق کی بدنامی نہیں چاہے گا. وہ لالچ سے باتیں بنا کر آپ کو اپنے نفع کا سبب نہیں ٹھہرائے گا. کیا کر رہے ہیں لوگ, جھوٹے استاد کیا کر رہے ہیں؟ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائے گے. اور جو قدیم سے ان کی سزا کا ذکر ہو چکا ہے, بہت اچھی بات ہے لکھی ہے, میں اس کو پڑھ کے بڑا سکون محسوس کرتا ہوں کہ لکھا ہے کہ اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت ہوتی نہیں. ڈائریکٹ, اوپن, ویوڈ, ویری کلیئر چیلنج ہے یہاں پر ان لوگوں کو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کا حکم جو ہے وہ قدیم زمانہ سے ہو چکا ہوا ہے. مت تو سوچیں کہ ان کی سزا ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہے, اٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ. کیونکہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ خدا کو پہلے ہی پتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. نقصان کس کا ہے؟ ان لوگوں کا نقصان ہے جو ایسے استادوں کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر اس چیز کو بیان کرتے ہیں پطرس رسول آگے 4 آیت میں کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. گناہ کرنے والے فرشتے جو ہم نے پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے 6 باب جینیسس چیپٹر 1 سے آنورڈ, خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا اور پھر وہ جو تھا جنہیں انہوں نے چنا, پسند کیا, انہوں نے دیکھا خوبصورت ہیں, ان سے انہوں نے بیاہ کر لیا. بیاہ کرنا جو ہے وہ اینجلز کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نیفیلیم, جائنٹس, یہ سب چیزیں پھر دنیا میں آئیں اور پھر جو ہے وہ دنیا میں قتل و غارت اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوئی. اور ایک نیفیلیم کا قد تقریباً 3.5 کلومیٹر تک جو ہے وہ ابھی تک کاؤنٹ کیا گیا کہ اتنے بڑے ہوتے تھے وہ. بہرحال یہ کہ کیونکہ وہ ایک مکسڈ بریڈ تھی اس لیے پھر اس کی وجہ سے پرابلمس بنی. لیکن یہ میں نے اسی لیے ساتھ ٹچ کیا کہ آپ کو وہ پرانی بات یاد آ جائے کہ یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دن دنیا پر طوفان بھیج کر راستہ بازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 آدمیوں کے بچا لیا. یہ اس کی کچھ جو ہے وہ ایگزامپلس دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. ان کو خدا نے نہیں چھوڑا, فرشتوں کو نہیں چھوڑا, پہلی دنیا کو نہیں چھوڑا. یہ کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے؟ یہ نہیں بچیں گے کبھی بھی. یہ چیز جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو آپ کے ذہن میں کہ ایسی تعلیم جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے, شہوت پرستی سے تعلق رکھنے والی باتیں, لالچ کی باتیں, خداوند کا انکار کرنے والی باتیں, یہ سچے استاد دیں گے, وہ نہیں دیں گے کبھی. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آج کے لیے صرف اتنی ہی ریکارڈنگ ہم کریں گے اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ. کل جو ہے مزید ہم اس کو اگلی 5ویں آیت تک ہم نے پڑھا ہے, ہم اس کو 6ٹھی آیت سے کنٹینیو کریں گے اور ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنی آڈیو ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنے کویسچنز, کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں تاکہ ہم ان باتوں کو ڈسکس کر سکیں. خداوند آپ کو
بڑی برکت دے، آمین۔